हेलो एवरीवन। सर रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और फंक्शन। आज फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन। जैसे फर्स्ट हमारा कोई फंक्शन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, राइट। सपोज ए बी सबसेट ऑफ एक्स, राइट। So function of A union A intersection B will be subset of function of A intersection function of B, right? तो ये वाला प्रूव करना है हमें। तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ तो देयर एग्जिस्ट x belongs to A intersection B such that fx is equal to y, right? तो x belongs to अगर A intersection B है, this implies x belongs to A and x belongs to B, right? तो x belongs to A तो function of x belongs to function of A होगा and function of x belongs to function of B, right? This implies function of x belongs to function of A intersection function of B, right? So function of x y belongs to function of A intersection function of B. This implies function of A intersection B subset of function of A intersection function of B, right? तो ये प्रूव हो गया। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, राइट, एक्स टू वाई, फाइन। तो सपोज ए बी बिलोंग ए बी सबसेट ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ ए बी सबसेट ऑफ एक्स है। फंक्शन ले रहे हैं आर टू आर, फंक्शन आर टू आर, राइट। एक फंक्शन लिया आर टू आर और फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये देखते हैं ए कोई भी लिया है 0 to 4 में लिया है, तो बी क्या हो जाएगा? आर टू आर में लिया है तो बी हो जाएगा -4 to 0, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से? 0, क्योंकि ए में भी 0 आ रहा है, बी में भी 0 आ रहा है, राइट। तो फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है। फंक्शन ऑफ ए क्या है? फंक्शन ऑफ ए 0 to 16, राइट। एंड फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, ये भी 0 to 16, राइट। तो यहाँ से आ गया फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन फंक्शन ऑफ बी, फाइन। ये तो हमारा फर्स्ट क्लेम हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हो गया सपोज ए बी बिलोंग्स टू एक्स, राइट। तो क्लेम क्या हमारा क्या है? नेक्स्ट फंक्शन प्रूव करने का, फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए यूनियन फंक्शन ऑफ बी, ये प्रूव करना, राइट। कैसे प्रूव करेंगे? तो लेट y belongs to function of a union b, क्या आ जाएगा? देयर एग्जिस्ट x belongs to a union b, फाइन, सब्जेक्ट टू y is equal to fx, right. X belongs to a union b, which implies x belongs to a or x belongs to b, fine. So fx belongs to fa or fx belongs to fb. This implies fx belongs to fa union fb. क्यों आया? fa में भी आ रहा है और fb में भी आया, और है तो यूनियन होगा। This implies y belongs to fa union fb, fine. Clear? fa union b सबसेट ऑफ fa यूनियन fb, फाइन। ये आगे यही रिजल्ट था ना प्रूव करने का, यही रिजल्ट प्रूव करना था। अब नेक्स्ट लेते हैं f x to y if a subset of x
if a subset of x, then function of x minus a should be equal to function of x minus function of a, right? ये प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ let y belongs to function of x minus function of y, function of a, right? So this implies y belongs to function of x, but क्योंकि f(x minus fy) है, right? But y does not belongs to function of a, right? क्योंकि y belongs to function of a minus function of a minus function of x minus function of a है, so y will belongs to function of a, but y does not belongs to function of y belongs to function of x, but y does not belongs to function of a, right? So y belongs to function of x, इसका मतलब क्या हो गया? This implies there exists x belongs to capital X such that y is equal to fx, or y does not belongs to function of a, इसका मतलब there does not exist x something a belongs to a such that y is equal to fa, right? तो y does not belongs to fa मतलब कोई ऐसा कोई a exist नहीं करता जो कि कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है, राइट? तो क्या हो गया? Therefore x belongs to capital X, but x does not belongs to capital A, right? So fx belongs to f of x minus a, right? तो ये आ गया ना, f of x minus f of a is subset of f of x minus a. ये प्रूव करना था, है ना? इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल जैसे कोई फंक्शन है, राइट? -4 to 4 to r और fx दे रखा है x स्क्वायर, राइट? तो a क्या आ जाएगा? a कुछ नोट करते हैं, 0 to 4, तो x माइनस a क्या हो जाएगा? -4 to 0, राइट? यहाँ 0 एक्सक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, राइट? तो f of x क्या हो जाएगा? क्योंकि x स्क्वायर है, f of x क्या हो जाएगा? 0 to 16, right? And f of a, since 0 is excluded, so 0 to 16, right? तो f of x minus f of a क्या होगा? मतलब जो कि x में है और a में नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ एक्सक्लूडेड है ना, तो ये 0. f of x minus f of a 0, right? But f of x minus a, since x minus a क्या है? x minus a -4 to 0 है ना, f of x minus a क्या हो जाएगा? 0 to 16. अब देखो यहाँ से f of x minus f of a, ये सबसेट है ना f of x minus a, राइट? क्योंकि f of x minus a में 0 to 16 है, f of x minus f of a में 0 है, तो 0 सबसेट है ना 0 to 16 का, तो ये फंक्शन ये हो गया प्रूव. एग्जांपल दे, राइट? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट? फर्स्ट टाइप है वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन का? x belongs to y, x to y एक फंक्शन है, let f x to y एक फंक्शन है, राइट? We say that f is 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन f of x1 is equal to f of x2 है, this implies x1 is equal to x2, right? अगर f of x1 equal to f of x2 है तो वो इंप्लाई करता है x1 equal to x2, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, राइट? एग्जांपल देखते हैं. तो इसका एग्जांपल देखते हैं वन फंक्शन का. जैसे कोई फंक्शन है f -4 to 4, राइट? -4 to 4 to r और fx is equal to x स्क्वायर दे रखा है, राइट? क्या है? तो देखते हैं मैंने क्या किया था, f of x1 इक्वल टू f of x2, राइट? मतलब x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x2 स्क्वायर. तो दिस इंप्लाई अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 है तो इसका तो ये इंप्लाई करना चाहिए x1 इक्वल टू x2, बट f of x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर करते हैं तो x1 शुड बी इक्वल टू, अच्छा ठीक है वो वाली बात मत
now if f of x1 equal to f of x2 है, right, this imply x1 equal to x2, ये कंडीशन था 1 1 फंक्शन का, राइट। तो यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, राइट। तो x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो रहा है, यहाँ x1 इक्वल टू x2 नहीं हो रहा है, x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, बस बट हमारा सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था, यहाँ दोनों हो रहा है, राइट। तो f इज नॉट 1 1 फंक्शन, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं 1 1 फंक्शन का, राइट। एग्जांपल 2, f r2r कोई फंक्शन f r2r कोई फंक्शन है, राइट, और fx इज इक्वल टू xq है, फाइन। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, f of x1 इक्वल टू f of x2, राइट, ये निकालते हैं। तो अगर f of x1 करते हैं x1 क्यू इज इक्वल टू x2 क्यू, तो यहाँ से ये आ रहा है x1 इक्वल टू x2 विच वॉज द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। सो ये कैसे आया, बाय टेकिंग पावर 1/3 क्यूब रूट x1 क्यूब टू द पावर 1/3 टू x2 क्यूब टू द पावर 1/3, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, राइट। सो फंक्शन इज 1 1, राइट, 1 1 फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, x 1 2 3 4 5, x 1 2 3 4 5 है, राइट, एंड y 3 4 5 6 7 8, राइट। एक कोई फंक्शन है x, एक कोई सेट है x जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड एक कोई सेट है y जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8, राइट। एक फंक्शन डिनोट करते हैं x2y में, राइट, x2y में एक फंक्शन डिनोट करते हैं एज कैसा, f of x इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट। तो इधर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, राइट, और इधर 3 4 5 6 7 8, ये x है, ये y है, राइट। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 मतलब 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, राइट। तो 2 4 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है एंड 5 7 से रिलेटेड है, बट 8 किसी से रिलेटेड नहीं है। बट x का जितना भी एलिमेंट है ना उसका यूनिक इमेज है y में, सो f इज 1 1 फंक्शन, राइट, क्योंकि हर चीज 1 2 3 4 5 हर एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है y में, राइट। सो f इज 1 1 फंक्शन सिंस each element of x has unique image in y, so f is 1 1 function, राइट। अब दूसरा पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड होता है ऑन टू फंक्शन और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, अ फंक्शन f x to y is said to be onto or surjective if codomain of f equal to range of f, right। तो अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा तो f ऑन टू फंक्शन होगा या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। एग्जाम्पल कोई फंक्शन है हमारे पास -4 to 4 से r, ये कोई फंक्शन है, राइट, और एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन लिया, राइट। तो इसका देखो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन 0 to 6, राइट, 16, क्योंकि देखो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इधर -4 -3 -2 ऐसा कुछ ले लिया, इसमें जरूरी नहीं इंटीजर आएगा, कोई भी आ सकता है। तो कोडोमेन 0 से 16 आ रहा है, राइट। ये हम ऑन टू फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ रेंज की बात करेंगे, कोडोमेन और रेंज की बात करेंगे, राइट। तो कोडोमेन तो आ रहा है 0 से 16 क्योंकि -4 to 4 है, तो मैक्सिमम स्क्वायर 16 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, राइट। और रेंज
एक्स स्क्वायर का रेंज क्या है? रेंज तो ऑल रियल नंबर है, बट रेंज इक्वल टू रियल नंबर, राइट? 10 कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा है 10 इफ y लेस देन 0 और y greater than 16. y less than 0 or y less than greater than 16, then there does not exist any x belongs to -4 to 4 such that fx is equal to y, right? तो y less than 0 और y greater than 16 के लिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो x में आ जाए, राइट? So f is not onto function. So f is not onto function, right? और एग्जांपल देखते हैं हम एक, तो f है, राइट? 0 to infinity to 0 to infinity, डोमेन भी 0 to infinity एंड रेंज भी 0 to infinity, राइट? और fx is equal to 1 by x है, राइट? तो सपोज यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज 1 by x को y कर लेते हैं सपोज, राइट? तो दिस इम्प्लाई x क्या हो जाएगा? 1 by y, राइट? सो fx क्या हो जाएगा? fx is equal to 1 by x equal to 1 by x क्या हो गया? 1 by y, राइट? इक्वल टू y, राइट? तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ रहा है, क्योंकि देखो fx 1 by x है ना, तो अगर x 0 से इंफिनिटी होगा तो fx भी 0 से इंफिनिटी होगा, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ रहा है, राइट? हियर कोडोमेन equal to 0 to infinity, right? And range equal to 0 to infinity. So f is onto function, right? तो 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गया, राइट? कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम ऑन टू फंक्शन का। अब एक डिनोट करते हैं डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स, राइट? एक डेफिनेशन है हमारा, सपोज एक फंक्शन है एक्स टू वाई, राइट? एंड जी कोई फंक्शन है वाई टू जेड, राइट? द composition of f and g denoted as GOF, right? तो GF क्या होगा? GF is defined as follows. GOF x कैसे डिफाइन करेंगे? x to z, right? Given by GOF x is equal to G of fx, right? GOF मतलब G of fx. तो अब हम देखेंगे G of fx निकालते कैसे हम, राइट? एग्जाम्पल है कोई हमारे पास f r2r एंड g r2r, राइट? कोई फंक्शन है दो, f और g कोई फंक्शन है r2r एंड fx ले लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड gx ले लेते हैं एक्स क्यूब, राइट? हमें निकालना है f ऑफ g, f o g निकालना है, राइट? ये हो गया f ऑफ gx, राइट? gx हमारे पास है एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ एक्स क्यूब, राइट? मतलब एक्स क्यूब स्क्वायर मतलब x टू पावर 6, राइट? ये हो गया एफ ओ जी। अब जी ओ एफ निकालते हैं, ये एफ ओ जी आ गया, जी ओ एफ ट्राई करते हैं। जी ओ एफ क्या होगा? तो जी ऑफ एफ एक्स, राइट? मतलब जी ऑफ एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, राइट? मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू एक्स पावर 6, राइट? तो यहां से हमारे पास आ रहा है एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, राइट? एफ ओ जी इक्वल टू जी एफ आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे, राइट? एफ आर टू आर, राइट? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी आर टू आर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट?
तो एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर। नाउ जी ओ एफ निकालेंगे इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, राइट, जी ऑफ साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, राइट, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ से जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी आ रहा है, लास्ट एग्जाम्पल में जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी आ रहा था, बट दिस एग्जाम्पल में जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल ही आएगा, राइट, अलग 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 भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ए कोई फंक्शन है हमारे पास, राइट, 1 2 3 4 5, ए कोई फंक्शन है, राइट, आई मीन ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, और बी कोई सेट है 0 1 4 9 10 16 20 25 30, राइट, बी कोई सेट है, एंड सी कोई सेट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो एबीसी कोई सेट आ गया, ए सेट है हमारे पास 1 to 5, बी सेट है 0 1 4 9 10 16 20 25 30, एंड सी सेट है 1 to 15, राइट। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ए टू बी, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। एक फंक्शन डिनोट करते हैं जी बी टू सी, राइट, जी ऑफ बी इज इक्वल टू रूट बी if b is a perfect square and b by 2 if b is not a perfect square, right, and एक और डिनोट करना, तो देखो GOF क्या होगा, GOF will be a to c, right, a to c कोई फंक्शन होगा, तो GOF a इक्वल टू क्या आएगा, g of f a, राइट, तो f a क्या है, a स्क्वायर, g of a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, तो इसका वैल्यू रूट बी होगा, राइट, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए, तो GOF a विल बी इक्वल टू ए, राइट। अब देखो हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, राइट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट, राइट। कौन सा 3 स्टेटमेंट है, 1 एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है एफ इज 1 1। तीसरा स्टेटमेंट है फॉर एनी टू disjoint sets A and B, FA and FB are disjoints. For any two disjoint sets A and B, FA and FB are disjoint, right? तो इसको प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट प्रूफ, स्टेटमेंट 2 से 1 प्रूव करते हैं, राइट। तो क्या प्रूव करना हमें, सपोज दैट f is 1 1, then f of a intersection b सबसेट ऑफ f of a intersection b, राइट, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना, लेट f belongs to f of a intersection f of b, right, this imply y belongs to f of a and f of b, fine। तो y belongs to f of a, this imply there exists a belongs to a such that y is equal to fa, right, and y belongs to f of b मतलब there exists b belongs to capital B such that
y इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ डी, राइट। तो क्या आ गया, वन वन फंक्शन का क्या था, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दिस इंप्लाई ए एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यही था ना कंडीशन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये आ रहा है हमारे पास, दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सिंस एफ ऑफ एफ वन वन है, ये कैसे है इससे, सिंस एफ इज वन वन, राइट। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी, तो दैट इज ए बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो आ गया y इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट। यही करना था ना आपको। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं, कैसे होगा। देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, f इज वन वन, तो f फॉर एनी टू डिसजॉइंट सेट्स a एंड b, fa एंड fb आर डिसजॉइंट, राइट। ये प्रूव करना है। तो सेकंड से थर्ड प्रूव करना है, सपोज दैट f of a intersection b is equal to f of a intersection f of b, right. Let a and b be disjoint sets, disjoint subsets of x, right. That is a intersection b क्या होगा, phi, right, क्योंकि a और b disjoint है तो a intersection b phi होगा। तो f of a intersection b क्या हो जाएगा, f of phi is equal to phi, right. So f of a intersection f of b ये हो जाएगा f of a intersection b इक्वल टू phi। तो f of a intersection f of b क्या हो, phi आ रहा है, दैट इज f of a and f of b आर डिसजॉइंट, राइट। अब थर्ड स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं हम, थर्ड से सेकंड प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो कैसे करें इसमें, सपोज दैट f takes disjoint sets, two disjoint sets, right. Let एक x1 x2 लाते हैं belongs to x, right. Then suppose that f of x1 equal to f of x2, right. अब इसका अपोजिट हम एज्यूम कर ले रहे हैं, राइट। लेट अस assume to the contrary that x1 equal to x2, that is f is not one one function, x1 equal to x2 है, f is not one one function है, तो क्या हो जाएगा, x1 not equal to x2, this imply x1 and x2 are disjoint, and f of x1 not equal to f of x2, this imply f of x1 not equal to f of x2, which is, पहले मैं उसका उल्टा मान लिया, तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन सन दैट f is वन वन, राइट। अब एक और एग्जांपल करते हैं, लेट एक फंक्शन है, राइट, a to b, then f is वन वन if and only if there exists a function g b to a such that g of f is equal to identity function of a, identity function on a, इसको डिनोट करें i d a, और सेकंड क्या हो गया, g is on to, राइट। ये हमें प्रूव करना है। तो एक फंक्शन है f a to b, f वन वन तभी होगा जब ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा कि कोई g फंक्शन है b to a such that g of f is equal to identity function on a and g is on to function, राइट। ये तभी होगा। तो प्रूफ करते हैं इसका, प्रूफ कैसे होगा, सपोज दैट
f is 1 1, right? Define gf define करेंगे, define g b to a, right, as gb is equal to a if b equal to fa and a dash otherwise, right? तो क्या होगा, देखो जी ओ एफ क्या होगा, जी ओ एफ ए क्या होगा, जी ऑफ एफ ए, राइट, इज इक्वल टू ए, क्योंकि बी इज इक्वल टू एफ ए है, राइट, तो ए होगा इज इक्वल टू आई डी ए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना ये। एंड सेकेंड केस हो गया, लेट ए बिलोंग्स टू ए, लेट बी इज इक्वल टू एफ ए, राइट, देन जी बी क्या हो गया, बी एफ ए है, तो जी ऑफ एफ ए, राइट, इज इक्वल टू ए, प्लस एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू भी आ गया। अब देखो, सपोज देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू फंक्शन जी बी टू ए, राइट, एक ऑन टू फंक्शन डिनोट करेंगे जी बी टू ए, राइट, सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई डी ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सपोज कर लिया हमने। So if f of a1 is equal to f of a2, right? G of f1 क्या होगा? Is equal to g of f a2, right? तो ये क्या होगा? g o f a1 is equal to g o f a2, right? This implies identity function of a1 is equal to identity function of a2, right? This implies a1 is equal to a2 plus f is 1 1। तो इसका कन्वर्स भी प्रूव कर दिया हमने। पहले था कि f अगर 1 1 फंक्शन होगा तो g ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब हमने ये प्रूव कर दिया g ऑन टू फंक्शन होना चाहिए और g f होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a। अब हमने इसका कन्वर्स प्रूव किया कि अगर g of आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a है एंड g ऑन टू फंक्शन है, देन f is 1 1 फंक्शन होगा, राइट। दोनों कन्वर्स भी प्रूव कर दिया और सीधा भी प्रूव कर दिया। अब एक और देखते हैं प्रूफ यहाँ पे, लेट f a to b इक्वल फंक्शन डिफाइन किया जाए, द f is on to if there exists a function g b to a such that, अगर f on to है तो there exist एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा b to a such that, दो कंडीशन, f of g is equal to identity function of b and g is 1 1, right? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ से सपोज कर लेते हैं, सपोज f is on to, right? हमने सपोज कर लिया f is on to। so for each b belongs to capital B, a b क्या हो जाएगा, a belongs to a so that fa is equal to b, right? फिक्स एक कोई स्मॉल ए फिक्स करेंगे ए बी में, यूनिक, जो कि यूनिक होना चाहिए, फिक्स यूनिक ए बिलोंग्स टू ए बी, राइट। अब जी डिफाइन करते हैं, जी क्या होगा, डिफाइन जी बी टू ए, राइट, एज जी बी इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो देखो फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ जी निकालेंगे, क्या होगा, एफ ऑफ जी बी, राइट, इक्वल टू एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी। तो ये क्या गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी। ये प्रूव करना था फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन क्या हो गया, सपोज अब 1 1 प्रूव करना है इसको, सपोज कर रहे हैं, सपोज 1 1 प्रूव करना है, तो अगर जी बी वन इक्वल टू जी बी टू है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, बी वन इक्वल टू बी टू आना चाहिए, तब 1 1 होगा। तो क्या होगा, जी बी वन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी बी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी टू, राइट। दिस इंप्लाई एफ ओ जी बी वन इक्वल टू एफ ओ जी बी टू, राइट। दिस इंप्लाई बी वन इक्वल टू बी टू। सो एफ इज 1 1 प्रूव हो गया।
thus G is 1 1. G 1 1 हो गया. अब इसका कन्वर्स देखते हैं हम. इसका कन्वर्स देखते हैं. सपोज there exists a 1 1 function G B to A such that FOG is equal to identity function of B. Let small b belongs to capital B and let small a is equal to GB. स्मॉल ए अगर कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल ए इक्वल टू जी बी हो जाएगा. एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जी बी, राइट, इज इक्वल टू एफ ओ जी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी. दस एफ इज ऑन टू, राइट. तो इसका सीधा वाला भी प्रूव हो गया, इसका कन्वर्स भी प्रूव हो गया, राइट. ओके, हमारा रिलेशन फंक्शन चैप्टर एंड हो गया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. फाइन, थैंक यू.